So today in the ISI crash course, we are entering into calculus. Okay. Calculus is an area that has featured extensively in the ISI entrance examination. In fact, it's one of my favorite scoring areas as well. It's an area where the twisted questions can be usually done by writing it down and by a few manipulations that are common within all the problems. Okay, so it'll be very, very interesting to take a look at all these questions. And once you get the hang of all the tricks and the techniques that have to be used in functions, convexity, concavity, limits, continuity, differentiability, maxima, minima. This area of calculus is very, very scoring for ISI. Okay. So it is an area where each of you have to get each and every question correct. It is a high scoring area, right? So let's go into functions for today's class. We'll do functions, domain, range, inverse of a function. We'll talk about increasing, decreasing functions, and then homogeneous and homothetic functions. So let's begin with what is a function. A function is a mapping from a set called the domain to another set called the codomain. It's a mapping from a set which is called the domain. Supposing in this example, A, B, C, D, E is the domain and 1, 2, 3, 4 is the codomain. Okay. All the elements that have a mapping from the domain, like here 1, 3, 4. 2 does not have any mapping from the domain. So 1, 3, and 4 constitute the range, whereas 1, 2, 3, 4 entirely is called the codomain. Okay. And a function is such that each element in the domain has a unique element mapped in the codomain. So अगर A 1 पे जा रहा है, A cannot go to 2 or 3 as well at the same time. ठीक है? So each element in the domain has to go to exactly one unique element in the codomain. ठीक है? For it to be a valid domain, each and every element in the domain needs to have a mapping in the codomain, and all the mapped elements are called the range. ठीक है? All of this you would already know. I'm just doing it very quickly for each of you. Right? Now, just to give an example, consider the relation. This is the relation. Okay. The first number in each of these ordered pairs constitutes the domain, and the second number constitutes the codomain. Okay. So 0, 7, 0, 8. So 0 is going to 7 also, 0 is going to 8 also. So this is definitely not a function. Okay. So the domain is 0, 1, and 2. That's all the x elements in these ordered pairs. And 7, 8, 9, 10 are all the y elements in these ordered pairs that will be constituting the range. Okay. Okay. So now if you take another example where fx is equal to 1 by x, what will be the domain here? The domain is all values of x for which the function is defined. So 1 by x is defined for all x except when x is equal to 0. Correct or not? If you agree with me, type A in the chat box. 1 by x is defined for all x except when x is equal to 0, right? So fx is equal to 1 by x will have a domain of all x, x real, but x is not equal to 0. Okay? So the domain is defined in that way. For all values of x for which the function is defined. Okay? That is what is the domain. And the range is all the values that f will take, all the values that this fx will take for different values of x. So fx is equal to 1 by x. If I take a look at the graph, look at this. It's going from 0 to minus infinity, and this is coming from infinity to 0. So everything is included except the number 0. It's not possible to be 0. Okay. So basically, it's everything from minus infinity to 0 open interval
you can write minus infinity to plus infinity, except or you can write fx not equal to 0 belonging to minus infinity to plus infinity. You can also write it in this way, minus infinity to 0 open interval union 0 to infinity. इसका मतलब है ये कि 0 is not there, everything else is there for this particular example, and this is called the range. All the values that fx can take constitutes the range. So now take this example, fx is equal to x square minus 1 less than x less than 1. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द डोमेन. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डोमेन क्या है. तो अब रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज दैट एफ एक्स कैन टेक व्हेन एक्स इज टेकिंग द वैल्यूज बिटवीन -1 to +1? क्या होगा? What values can fx take when x is taking the value between -1 to +1? सही जवाब 0 to 1 होगा ना. x स्क्वायर है, so -1 square is -1 is +1. It's not -1. So the ones who are saying that x between -1 to 1, range भी -1 to 1, अरे x square नेगेटिव वैल्यू कैसे लेगा? It's not possible. So range यहां पर है 0 to 1. You can put anything, any value between -1 to 1. You'll see that x square will always lie between 0 to 1. Open interval. Okay. ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं. अब एग्जाम्पल और नहीं होगा, अब डायरेक्टली आईएसआई का क्वेश्चन होगा. तो let's go ahead and take a look at these two questions. ISI 2018 PA question number 4, the domain of this function. So please understand, under the root, I need to have a positive number. ठीक है. So ये पॉजिटिव कैसे होगा? या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पॉजिटिव है, या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नेगेटिव है. तो पहला वाला केस को लेते हैं. जब बोथ पॉजिटिव है मतलब कि 2x - 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में x+3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0. 0 तो हो नहीं सकता, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड. तो x इज ग्रेटर देन -3. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड x हैज टू बी ग्रेटर देन -3. ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ. बेसिकली दोनों पॉजिटिव है, उसका मतलब है कि हाफ टू इंफिनिटी होगा. ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव तो तभी होगा ना व्हेन बोथ ऑफ दीज कंडीशंस होल्ड. अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 अगर मैं खाली लूं, तब उसमें x इज इक्वल टू 0 इज देयर. x इज इक्वल टू 0 इफ आई पुट, तो यहां पर आ जाएगा -1/3 अंडर रूट. ये तो अनडिफाइंड हो गया ना. तो बोथ हैव टू बी पॉजिटिव टुगेदर, बोथ हैव टू बी पॉजिटिव टुगेदर. तो ये दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है हाफ टू इंफिनिटी कॉमन है. राइट, दैट इज हाउ यू विल हैव टू कंसिडर इट. सेकेंड, when both are negative, 2x - 1 less than equal to 0 and x+3 is less than 0. Both are negative together. इसका मतलब है x less than equal to half and इसका मतलब है x less than -3. अब ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है -infinity to -3. -3 इज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा. डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0. तो प्रॉब्लम. तो क्या आंसर है? दोनों नेगेटिव होगा -infinity to -3 में, एंड दोनों पॉजिटिव होगा हाफ टू इंफिनिटी में. तो आंसर है बी. एम आई मेकिंग सेंस? इफ दिस इज ओके, टाइप ओके इन द चैट बॉक्स. हमें डोमेन निकालना है. एफ एक्स इज डिफाइंड, जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स. दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू. फंक्शंस ऐसा टॉपिक है जिसको आपको ब्रेक डाउन करना है. पेन एंड पेपर को लेकर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा. कभी कभी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है ये. बहुत अच्छा इजी सॉल्वेबल टॉपिक है. तो यहां पर स्कोर करना है आपको, यहां पर गलती नहीं कर सकते. ओके. आईएसआई 2015 क्वेश्चन नंबर 8, अभी ये देखते हैं इसका डोमेन. तो इसका डोमेन कब होगा? सबसे पहले आप ये देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया है क्वेश्चन में ही. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर दे दिया है, एंड पहला
इससे आता है एक्स स्क्वायर माइनस वन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन. अब x तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन. This would ideally mean x is less than equal to minus 1 or x is greater than equal to 1. But since it is given to us that x has to be greater than equal to 0, so ये तो possible है नहीं, तो खाली ये possible है from the first case. Second में log of root over 1 minus x. तो ये 1 minus x has to be positive. अंडर रूट पॉजिटिव होना होगा. लॉग ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड, तो इक्वल टू जीरो इसीलिए इसमें नहीं है. इक्वल टू जीरो कर देंगे, लॉग जीरो इज अनडिफाइंड, याद रखिए. तो 1 माइनस एक्स हैज टू बी पॉजिटिव, इसका मतलब है एक्स हैज टू बी लेस देन 1. तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन से एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेकंड एक्सप्रेशन इज सेइंग एक्स लेस देन 1. दोनों क्या साथ में हो सकता है? एब्सोल्युटली नो. हाउ कैन x be greater than equal to 1 and be less than 1 at the same time? Is it possible? नहीं, राइट. तो ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या है? नल सेट. व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? इट्स अ नल सेट. एक भी ऐसा x का वैल्यू नहीं निकलता है जो इसको सेटिस्फाई करेगा. सी, इट वुड हैव सेटिस्फाइड अगर x लेस देन 1 आया यहां पे एंड x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 भी रहता. सो देन इट वुड हैव बीन x लेस देन इक्वल टू माइनस 1. दैट कुड हैव बीन द आंसर. अब माइनस इंफिनिटी और ये सब कहां से ऑप्शन में आया? आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो a एंड b तो डायरेक्टली आउट है. हाउ कैन माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन बी द डोमेन? बिकॉज इट्स ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. So a few of you who have said कि A is the answer, please read the question properly. Reading the question will solve most of your issues. जो भी डाउट है क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 5 बार पढ़िए. आईएसआई में आपके पास में 4 मिनट है इन ईच क्वेश्चन. ठंडे दिमाग से करेंगे, 1 से 1.5 घंटा में आपका ये पूरा पेपर हो जाना चाहिए सॉल्व. लास्ट का हाफ एन आवर विल बी द टाइम टू रिवाइज. ओके, तो ये हो गया 2015 क्वेश्चन नंबर 8. अब ये आईएसआई 2022 पीए क्वेश्चन नंबर 9 में हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस. ऑन टू फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो मैंने आपको 2 सेट बता दिए थे, एक है डोमेन, एक है कोडोमेन. ठीक है. अब अगर ये 1 2 3 है, ये एबीसी है, तो अगर ऐसा कुछ मैपिंग है तो यहां पर रेंज इज ओनली ए बी, कोडोमेन है एबीसी. ठीक है. वेन एवर एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन इज देयर जो रेंज में नहीं है, मतलब कि रेंज इज लेस देन द कोडोमेन, जितने एलिमेंट्स है रेंज में वो कोडोमेन से कम है, तब ऐसा फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन. एंड वेन एवर ऑल द एलिमेंट्स इन द कोडोमेन आर मैप्ड. एग्जाम्पल, अगर 1a है, 2b है, 3c है, मतलब कि कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल, रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन. वेन एवर आई हैव दिस, देन आई हैव अ ऑन टू फंक्शन. ठीक है. तो इनटू फंक्शन क्या है? रेंज इज लेस देन द कोडोमेन. रेंज में सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के नहीं है, रेंज में सारे एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन नहीं है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन. एंड वेन एवर द रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन. समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो एस टाइप करिए और फिर मुझे दिखाइए कि आपको समझ में आ गया बाय सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 करेक्टली. ठीक है. तो उससे पहले आईएसआई 2015 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एंड देन टेक अ लुक एट 2022 क्वेश्चन 9. आईएसआई 2015 क्वेश्चन नंबर 11. ओके. द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है. ठीक है. इट कैन बी डन इन मल्टीपल वेज. वन ऑफ द वेज इज यू रियलाइज कि ये मिनिमम कब होगा. मैक्सिमम तो 4 टू द पावर ऑफ इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी, सो मैक्सिमम तो इंफिनिटी है ही. मिनिमम वैल्यू आपका कैसे निकलेगा? मिनिमम वैल्यू आपका ऐसे निकलेगा दैट बाय लुकिंग एट दिस यूर लाइक कि x इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, 7 आ रहा है मेरा. ओके. बट आपको यह समझना होगा कि ये क्यों है मिनिमम वैल्यू. ये क्यों है इसको थोड़ा अरेंज करके मैं आपको बताता हूं. एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, सो 4 टू द पावर एक्स प्लस 4 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3.
ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट है ए प्लस वन बाय ए का फॉर्मेट। ये है ए प्लस वन बाय ए का फॉर्मेट। एंड ए प्लस वन बाय ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्यों? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये ये तो देखा है आप लोगों ने। तो ए एंड वन बाय ए का अरिथमेटिक मीन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड वन बाय ए। ये कट जाता है, तो ये क्या आएगा? ए प्लस वन बाय ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आया या नहीं आया? ए प्लस वन बाय इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये तो 3 है ही। तो ओवरऑल आई कैन से दैट दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? ये जो कॉन्सेप्ट है ना ए एंड वन बाय ए का, ये कॉन्सेप्ट से लिटरली कैलकुलस में 10% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इन आईएसआई। सो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, प्लीज कीप अ नोट ऑफ इट। ये सारे ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए टू हैव अ सक्सेसफुल आईएसआई। ओके, सो अ ट्रिक इज ए एंड वन बाय ए का फॉर्मेट। जब भी ए एंड वन बाय ए का फॉर्मेट आप देखो, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, एक दो इसके अंदर में टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या है टर्म एंड कंडीशन? ए हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा तब तो ये इनइक्वालिटी ही होल्ड नहीं करेगा। जीएम आ जाएगा नेगेटिव, राइट? एएम आ जाएगा नेगेटिव, जीएम आ जाएगा पॉजिटिव, नहीं होगा। ए एंड वन बाय ए हैज टू बी पॉजिटिव। दैट बेसिकली मीन्स कि ए हैज टू बी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव के लिए ये होल्ड करेगा। तो वेन एवर यू सी ए एंड वन बाय ए प्लस वन बाय ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां पर आंसर बहुत इजीली निकल गया है। द आंसर इज डी। AM and GM is applied because I can see a pattern of A and 1 by A. ठीक है, whenever I see A plus 1 by A, वहां पर AM GM को अप्लाई करना है। ये सारे ये सारे ट्रिक्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। इट विल कम विथ प्रैक्टिस। कहां पर कैसे अप्लाई करना है, आइडियाज विल ऑटोमेटिकली कम फ्रॉम योर हेड। यू हैव टू डू इनफ आईएसआई क्वेश्चंस। इनफ आईएसआई क्वेश्चंस को करेंगे, अपने आप सब कुछ दिमाग में आने लगेगा, एज इफ बाय मैजिक। You can do it by maxima and minima also, but make it easy for you. नेक्स्ट देखते हैं आईएसआई 2022 पीए क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर ए इज दिस, बी इज दिस, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर? अब 1 2 3 4 5, ये है 1 2। ठीक है, तो ईच वन ऑफ देम 1 2 3 4 5 हैव टू ऑप्शंस। वन कैन गो टू आइदर 1 और 2, 2 can go to either 1 or 2, 3 can go to either 1 or 2, 4 can go to either 1 or 2, 5 can go to either 1 or 2. So total number of ways in which I can have a mapping is 2 to the power 5. Total number of ways. ये कहां पर जा रहा है, कैसे, क्या मैपिंग हो रहा है, वो कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये है टोटल वेज। अब इसमें मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? मुझे ये देखना होगा कि कितने सारे वेज है इन विच टू गेट एन इनटू फंक्शन। तो टोटल वेज माइनस द नंबर ऑफ वेज इन विच आई गेट इनटू फंक्शन, तभी तो ऑन टू मिलेगा ना। इनटू कैसे मिलेगा? जब सब कुछ एक के तरफ में चला गया। इफ ऑल ऑफ देम गो टू 1 और ऑल ऑफ देम गो टू 2, तब मेरा इनटू फंक्शन बन जाएगा। तो इफ ऑल ऑफ देम गो टू 1, 1 वे। इफ ऑल ऑफ देम गो टू 2, 1 वे। तो क्या है? 2 दी पावर 5 माइनस 2। ये सेम टाइप का प्रॉब्लम कम से कम 4 बार आईएसआई में आ चुका है इन पास पेपर्स, कम से कम 4 बार। ओके, आप और भी क्वेश्चंस देखेंगे। हाउ मेनी वेज इन विच वी कैन गेट ऑन टू फंक्शन और हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस डू वी हैव, बहुत बार पूछा गया है। सेम कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। प्लीज कीप अप टू द पेस ऑफ द क्रैश कोर्स। ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन गो टू एनी ऑफ द टू। तो दो each one of them have two options, so 2 to the power 5 minus the number of ways in which we can get into function। into function क्या है? all of them going to either 1 or 2, so 2 ways in which I can get into function। कौन से 2 ways? all go to 1 one way, all go to 2 one more way। तो total ways in which to get an into function 2 ways।
उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी गेट ऑन टू, क्योंकि खाली इन टू है या ऑन टू है, कोई और पॉसिबिलिटी होता नहीं है फंक्शंस में. ओके, सो दिस इज ISI 2022 PA क्वेश्चन नंबर 16. F इज फ्रॉम R टू R. अब ये R टू R क्या है? ये पहला हो गया आपका डोमेन. दिस सेकेंड R इज कोडोमेन. ओके, fx is equal to this, right? So कोडोमेन है ये. रेंज क्या है? Range x square is always greater than equal to 0. Therefore, x square plus 1 is always greater than equal to 1. 1 to the power of 2022, this I can say is always greater than equal to 1. ठीक है, तो fx will always be between 1 to infinity. Am I making sense? x square plus 1 है ना, square तो हमेशा पॉजिटिव होगा, and x square plus 1 will always be greater than equal to 1. So this x square plus 1 to the power 2022, this will always be between 1 to infinity. कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. रेंज क्या है? दिस. तो रेंज और कोडोमेन क्या सेम है? नहीं है. रेंज एंड कोडोमेन इज नॉट द सेम, तो ये ऑन टू नहीं है. दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज एन इन टू फंक्शन. समझ में आया? इफ दिस इज अंडरस्टैंडेबल, टाइप यू इन द चैट बॉक्स. ये ऑन टू नहीं है, ये इन टू फंक्शन है. सो नॉट ऑन टू इज वन पार्ट ऑफ द आंसर. दूसरा, ये क्या 1 to 1 है? ये 1 to 1 भी नहीं है. क्यों? कोई भी दो वैल्यूज ले लीजिए. एफ ऑफ माइनस ए विल बी ए स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 2022, एंड एफ ऑफ ए will also be a square plus 1 to the power 2022. Whenever f minus a is equal to fa, इसका मतलब है कि दो वैल्यू गोइंग टू वन वैल्यू, ए भी इस पे जा रहा है, माइनस ए भी इस पे जा रहा है, मतलब ये 1 to 1 तो हो ही नहीं सकता है. आंसर इज डी. इट्स नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू. Is this understandable? Type U in the chat box if it is understandable. It's not 1 to 1. It's not on to. Okay. तो ये हो गया ISI 2022 क्वेश्चन नंबर 6. ISI 2011 क्वेश्चन नंबर 2. तो पहला बात तो न्यूमरेटर, this has to be greater than equal to 0, the inside part. So x has to be greater than equal to -3. ग्रेटर देन इक्वल टू -3 तो है ही नहीं ऑप्शंस में. डायरेक्टली नन ऑफ दीज आप मार्क कर सकते हो, बट फिर भी ये भी चेक करना है. द डिनोमिनेटर हैज टू बी नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर हैज टू बी नॉट इक्वल टू 0. तो ये क्या है? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1. दिस हैज टू बी नॉट इक्वल टू 0. मतलब कि x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू -4 एंड -1. अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो -4 तो होने का सवाल ही नहीं है. तो आंसर क्या है? आंसर है ये -3 टू इंफिनिटी एंड -1 नहीं है. ठीक है, दिस इज व्हाट द आंसर इज. Okay, answer is none of these. Now we learn how to find out range of the function. Find the range of the function x square by 1 plus x square. Multiple ways to do this. I'll just show you two of the ways. First way is by observation. Okay, just add 1, subtract 1. So you'll get 1 minus 1 by 1 plus x square. Okay, now this cannot be negative and it's always a fraction. Okay, this will always lie between 0 and 1. Supposing I call this z, so z will always lie between 0 and 1. So 1 minus a fraction will always be a fraction. Okay, so it'll be equal to 1 if x is equal to 0, right? So f will always lie between 0 and 1, never being equal to 1, right? So that's one of the ways. The other way is to convert it in terms of y. Now what do? I get ये है y plus yx square minus x square is equal to 0. Square common, y minus 1 plus y is equal to 0.
Now treat this as a quadratic form. Okay, and I know that x has to be a real number, so the roots of this quadratic are real. Roots are real का मतलब होता है b square minus 4ac, that is the discriminant, has to be greater than equal to 0. That's what we apply here. Treat this and compare this with ax square plus bx plus c. ओके, तो b स्क्वायर यहां पर क्या है, x का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, -4 है, a क्या है, a इज y -1, c क्या है, y, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट बेसिकली मींस y -1 into y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0. Okay, now this into this has to be less than equal to 0. It basically means that y -1 into y, what are the two roots if I equate it to 0? 0 and 1. If y is less than 0, both of them are negative. That means that the expression is positive. If y is between 0 and 1, this is negative, this is positive, so the expression is negative. At 1 it is equal to 0, beyond it is positive. अब यहां पर क्या है दिया हुआ, यहां पर दिया हुआ है y -1 into y is less than equal to 0. It means that y has to lie between 0 and 1. Okay, and then you compare it with this expression that we have here. If y is equal to 1, that means x square into 1 minus 1 plus 1 is equal to 0. That means 1 is equal to 0, which is absolutely impossible, or it doesn't make any sense. So y cannot be equal to 1. Am I making sense? मैं जल्दी कर रहा हूं, प्लीज कॉपी इट डाउन, कीप योर पेस इंटैक्ट. ओके, y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. जब भी मेरे पास में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मैं y एंड x को लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेंज. दिस इज वन मेथड. ओके, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स. सो दिस यू राइट. नाउ x हैज टू बी रियल, therefore the discriminant has to be greater than equal to 0. Therefore, y has to lie between 0 and 1. Go to the original expression. Original expression में extreme values को compare करिए. दिखा कि y is equal to 1 not possible. ठीक है, तो it's the same thing that I got first. कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एक और मेथड है when you find out inverse. ठीक है,